یہ اسٹڈی میں جیفرسن تھیولوجیکل سیمنری کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے، عبادت کے اجزاء کیا ہے یا عبادت کے عناصر کیا ہیں؟ عبادت بائبل کے مطابق صرف ایک مذہبی رسم یا گیت گانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ، مکمل اور روحانی تعلق ہے جو انسان اور خدا کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ عبادت میں انسان اپنے دل، عقل، روح اور عمل کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ پرستش کے کئی بنیادی عناصر ہے یا اجزاء ہے جو ایک سچے ایماندار کی زندگی میں ظاہر ہونے چاہیے۔ آج میں پرستش کے مختلف اجزاء، ایلیمنٹ یا عناصر آپ کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے ان کو سیکھ سکیں۔ نمبر 1 جو ہے اس کا عناصر یا اجزاء وہ ہے خوف خدا اور تعظیم کے ساتھ پرستش کرنا۔ استثنا 12 باب اس کی 10 سے 13 آیت میں لکھا ہے، اب اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے، اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے اور خداوند کے حکموں اور آئین پر عمل کرے جو میں آج تجھے دیتا ہوں تاکہ تیرا بھلا ہو۔ زبور 11 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی پرستش یا خداوند کی عبادت ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ کرو اور کامتے ہوئے خوشی مناؤ۔ وائز کی کتاب میں لکھا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جائے تو اپنے قدموں کو سنبھال اور سننے کے لیے نزدیک ہو، کیونکہ بیوقوفوں کی قربانی پیش کرنے سے یہ بہتر ہے۔ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، تھوڑی ہوں۔ عبادت میں سنجیدگی، ادب اور عاجزی بنیادی شرط ہے۔ دوسرا اجزاء یا ایلیمنٹ یا عناصر، عبادت میں خدا پر بھروسہ رکھنا اور ایمان رکھنا۔ زبور 5 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، راستی کی قربانیاں چڑھاؤ اور خداوند پر توکل کرو۔ پھر زبور 7 اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، خداوند کے حضور خاموش رہ اور صبر سے اس کا انتظار کر۔ اس کا حوالہ زبور 37 اس کی 7 آیت ہے۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے۔ عبادت کا دل ایمان ہے، بغیر ایمان عبادت یا پرستش بے معنی ہے۔ نمبر 3، حمد و ثنا، پریز۔ زبور 22 اس کی 22 اور 23 آیت میں لکھا ہے، میں اپنے بھائیوں کو تیرے نام کی خبر دوں گا، جماعت میں تیری حمد کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والوں، اس کی ستائش کرو۔ زبور 150 اس کی 1 سے 6 آیت میں اس طرح لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو، اس کے مقدس میں خدا کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو۔ ہر ایک سانس لینے والا، ہر ایک متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ عبرانیوں 13 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، پس ہم اس کے وسیلہ سے خدا کے لیے حمد کی قربانیاں یعنی ان ہونٹوں کا پھل چڑھائیں جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم بہت سی قربانیاں چڑھاتے ہیں خداوند کے حضور میں، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے ہم ہونٹوں کا پھل، پرستش، زبور، گیت بھی گائیں، اس کی شکر گزاری بھی کریں جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں۔ حمد و ثنا عبادت کا مرکزی اظہار ہے۔ نمبر 4، شکر گزاری، یہ چوتھا اجزاء ہے۔ زبور 100 اس کی 4 اور
5वीं आयत, शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो और हम्द करते हुए उसके सहनों में आओ, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मुनाजात के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। शुक्रगुजारी इबादत को जिंदा और हकीकी बनाती है। 5वां एलिमेंट्स या 5वां अज्जा, खुशी के साथ इबादत करो। ज़बूर 100 उसकी पहली 2 आयतों में लिखा है, ऐ अहले ज़मीन, खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में आओ। ज़बूर 100 में खुदा हुक्म देता है पूरी ज़मीन के लोगों को कि वो उसके हुजूर में खुशी का नारा मारे और खुशी से खुदावंद की इबादत करे और गाते हुए उसके हुजूर में आए। लूका 24 बाब उसकी 52 और 53 आयत में लिखा है, और वो उसे सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौटे और हमेशा हैकल में रहकर खुदा की हम्द करते रहे। इमाल 2 बाब उसकी 46 से 47 आयत, वो हर रोज यक दिल होकर हैकल में जमा होते थे, खुशी और सादगी से खाना खाते थे और खुदा की हम्द करते थे। सच्ची इबादत खुशी से भरी होती है, ना कि मजबूरी से। हम कभी भी मजबूरी से इबादत ना करें। मजबूरी में इबादत करनी है तो आप इबादत करें ही ना। आपने जब कभी इबादत करनी है, सच्ची इबादत और खुशी से भरी हुई इबादत करनी है, खुशी के साथ, विलिंग हार्ट, पूरे दिल के साथ, पूरे किरदार शख्सियत के साथ आपने इबादत करनी है, चूँकि ये खुदा का हुक्म है। 6 अज्जा, यसु मसीह का इकरार करना। इब्रानियों 13 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, हम उसके वसीला से खुदा के लिए हम की कुर्बानियाँ चढ़ाएं जो उसके नाम का इकरार करते हैं। इबादत में मसीह यस्सु को खुदावंद मानना बुनियादी हैसियत रखता है। नंबर 7, गुनाहों का इकरार, कन्फेशंस ऑफ सिन। ज़बूर 66 उसकी 18 आयत में लिखा है, अगर मैं दिल में बदी रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर हम दिल में गुनाह रखें, बदी रखें, गुनाह की ज़िंदगी बसर करें, जिस्मानी तौर पर हम बदी का शिकार हों, बदी में ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो फिर याद रखिए हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। सबसे पहले जो आपकी दुआ सुनी जाएगी वो ये है, आए खुदावंद मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, आए खुदावंद तू मुझे मेरे गुनाहों से माफ़ कर, मुझे माफ़ी दे। पहली दुआ आपकी यही सुनी जाएगी। इसलिए अगर हम दिल में बदी रखेंगे तो खुदावंद कभी हमारी दुआ को नहीं सुनता। नहमिया 9 बाब उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, ये इसराइलियों के बारे में है कि इसराइलियों ने यानी उन्होंने अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की बदकारियों का इकरार किया और खुदावंद अपने खुदा को सिजदा किया। गुनाहों का इकरार प्रस्तश को या इबादत को पाक और मकबूल बनाता है। मैं मुशर्रफ बेटे की मिसाल यहाँ देना चाहता हूँ। मुशर्रफ बेटे ने जो भी बाप ने उसको हिस्सा दिया वो सारा बुरे कामों में, अय्याशी में, कस्बियों में उड़ा दिया। जब वो भूखा मरने लगा तो उसको अपना घर याद आया, उसको अपना बाप याद आया और उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसको कहूँगा, आई बाप मैं तेरा गुनहगार हूँ और मैं आसमान की नज़र में भी गुनहगार हूँ, यानी खुदा का भी गुनहगार हूँ। याद रखिए जब हम गुनाह करते हैं, बुरी ज़िंदगी गुजारते हैं,
जब हम गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं, याशी करते हैं, बदकारी करते हैं, तो हम अपने माँ बाप के भी गुनहगार होते हैं और आसमानी बाप के भी गुनहगार होते हैं। और एक ही बात है, एक ही करार है जो हमें खुदा के पास लेकर जा सकता है। मुस्तफा बेटे ने कहा, अय खुदा, अय खुदावंद, अय बाप, मैं अब इस काबिल नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। मैंने तेरा गुनाह किया है। अय बाप, मैंने तेरा गुनाह किया, मुझे माफ़ कर। और आसमानी बाप, मैंने तेरा भी गुनाह किया, मुझे माफ़ कर। तो गुनाहों का इकरार इबादत को या प्रस्तश को पाक और मकबूल बनाता है। 8वां जुज़, कलाम खुदा की तलावत करना या डेली बेस बाइबल पढ़ना। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप 1 से 10 चैप्टर हर रोज़ ज़रूर पढ़ें। जिनके पास टाइम है, जो बाइबल स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर 5 से 10 चैप्टर पढ़ें। इस तरह आप साल में 5-6 दफ़ा बाइबल पढ़ सकते हैं। तो 8वां जो एलिमेंट्स है, नासर है, वो है कलाम खुदा की तलावत करना। कुलसियों 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, मसीह का कलाम तुम में कसरत से बसे। ज़बूर, हम्द और रूहानी गीत गाकर खुदावंद का शुक्र करो। पहला तिमोथी 4 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, जब तक मैं ना आऊँ पढ़ने, नसीहत और तालीम देने में लगा रह। ये पौलुस रसूल ने तिमोथियस को नसीहत की। मैं आपको भी नसीहत करता हूँ, आप चाहे डिग्री ले लें, चाहे आपने डिग्री नहीं ली, आप आम मसीह हैं, जब तक यीशु मसीह नहीं आता, हम बाइबल पढ़ने में, लोगों को नसीहत करने में, सिखाने में, लोगों को तालीम देने में हम लगे रहें। इबादत में खुदा का कलाम जो है ये मरकज़ है। 9वां इज्ज़ा, मौसीकी और गीत गाना। इफ्सियों 5 बाब उसकी 19 से 20 आयत में लिखा है, आपस में ज़बूर, हम्द और रूहानी गीत गाते रहो और अपने दिल से खुदावंद के लिए गाते और बचाते रहो और हमेशा खुदावंद और खुदा बाप का शुक्र करते रहो। ज़बूर 95 उसकी पहली 2 आयत, और हम खुदावंद के लिए गाएं, शुक्रगुजारी के साथ उसके हुज़ूर में आएं। मौसीकी इबादत का अहम मगर जुज़वी हिस्सा है। खुलासा, बाइबल के मुताबिक इबादत जो है दिल से होनी चाहिए, ईमान और सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए, सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि ज़िंदगी का अंदाज होना चाहिए। यूहन्ना 4 बाब उसकी 24 आयत, खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। थैंक यू, आमीन, गॉड ब्लेस यू।